Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today we will discuss a very interesting, rather humorous essay, The Man Who Was a Hospital. Page number 20 onwards. Dear students, The Man Who Was a Hospital has been written by Jerome Kalabka Jerome, who is also known as Jerome K. Jerome. He was an English novelist and playwright and a famous humorist as well. Because of certain unavoidable family circumstances, he had to leave his studies earlier and worked as a railway clerk, journalist, and actor for his survival. He is best known for his comic travelogue, Three Men in a Boat, that has also been translated in different languages of the world. Dear students, Three Men in a Boat is actually a story of three friends, including Jerome K. Jerome himself. Today's essay, The Man Who Was a Hospital, has been taken from this travelogue, where Jerome narrates his own story to his friends that is written in the beginning of this book. Now, I would like to give you the summary of this essay, The Man Who Was a Hospital. Number one, how the writer came to know that his liver was out of order. Actually, Jerome K. Jerome read a patent liver pill circular and concluded that his own liver was out of order because he had all the symptoms in himself written therein. Number two, he went to the British Museum to read up the treatment of some disease, then got interested in himself and read all the diseases from A to Z and concluded that he was suffering from all the diseases of the world except housemaid's knee. Number three, having all the diseases, he thought that he was a hospital in himself and the medical students might walk round him and take their medical diploma. Number four, he went to his doctor who examined him, understood him, and gave him the prescription. Number five, actually, in that prescription, there was no medicine but balanced diet, morning walk, and sleep, and to avoid unnecessary things. Now, let's discuss the lesson. Dear students, The Man Who Was a Hospital. In these two short paragraphs, we'll discuss two questions. How did Jerome K. Jerome come to suspect that his liver was out of order? Number two, what did he feel after reading every patent medicine advertisement? It was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order. मैं जानता था कि मेरा जिगर ही खराब है. Because I had just been reading patent liver pill circular. पेटेंट मुस्तनद खास ऑथेंटिक लाइसेंस्ड सर्कुलर इश्तिहार एडवर्टिजमेंट लीफलेट कि मैं अभी अभी एक जिगर की गोली के बारे में एक मुस्तनद इश्तिहार पढ़ रहा था इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स अलामात साइंस इंडिकेशंस के जिनमें उन अलामतों को तफसील से बयान किया गया था बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर कि जिसको पढ़ के कोई आदमी बता सकता है कि उसका जिगर कब ख़राब है. आई हैड देम ऑल आई हैड ऑल दोज सिम्टम्स. मेरे अंदर वो तमाम अलामतें मौजूद थीं जो वहाँ लिखी हुई थीं. इट वॉज अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग. एक्स्ट्रॉर्डनरी गैर मामूली, एक्सेप्शनल unusual. It was a most exceptional thing. It was a most unusual thing. बड़ी ही गैर मामूली बात है, बड़ी ही अजीब बात है. But I never read a patent medicine advertisement कि मैंने कभी कोई दवाई का मुस्तनद इश्तिहार नहीं पढ़ा without being impelled to the conclusion. Impelled, forced, कंपेल्ड मजबूर कि मैं ये नतीजा निकालने पर मजबूर ना हो गया हूँ दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज़ कि मैं उस ख़ास बीमारी का खुद शिकार हूँ. देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट विरुलेंट फॉर्म. विरुलेंट मीन्स फैटल, मेलिशियस, जो उस इश्तिहार में मुहलक तरीन शक्ल में बयान की गई है. यानी उस बीमारी का मैं खुद भी शिकार हूँ जिसका उसमें जिक्र किया गया है. ये बाज़ औक़ात कुछ लोगों के साथ
साथ नेचुरल भी होता है। आप किसी मरीज़ को लेकर डॉक्टर के पास जाएं तो जो मरीज़ अलामतें डॉक्टर को बता रहा होता है तो आप भी समझते हैं कि शायद ये अलामतें तो मेरे अंदर भी मौजूद हैं। द डायग्नोसिस फाइंडिंग, तशखीस, seems in every case to correspond, match, resemble, मिलना exactly with all the sensations that I have ever felt। बीमारी की तशखीस वो जो होती है हर लिहाज से मेरे महसूसात के बिल्कुल ऐन मुताबिक लगती है कि यानी उस बीमारी के बारे में जो अलामतें हैं वो ऐसे लगता था जैसे सारी की सारी मेरे अंदर भी मौजूद हैं। Here in this part we'll discuss one question, that is, why did the writer go to the British Museum and what did he find there? I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment. Treatment means cure, इलाज। To read up the cure for some slight ailment, बीमारी, sickness, disease of which I had a touch, जिसका मुझे शाइबा था कि वो मेरे अंदर मौजूद है। टच, अटैक, ट्रेस, हे फीवर वो बीमारी थी जिसका मुझे शाइबा था कि मैं उसका शिकार हूँ। हे फीवर आम नज़ला बुखार को कह सकते हैं, मौसमी एलर्जी की वजह से जो पैदा होती है। आई फैंसी इट वॉज, मेरा ख्याल है यही वो बीमारी थी, हे फीवर। आई गॉट डाउन द बुक एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, मैंने किताब निकाली और वो पढ़ लिया जो मैं पढ़ने के लिए आया था। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, बेख्याली में, आई आइडली टर्न्ड द लीव्स एंड बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेस। इंडोलेंटली, लेजीली, कैजुअली, और मैंने बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया जनरली। आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर डिजीज मेलेडी, कि वो बीमारी कौन सी थी। आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिजीज, विच वॉज द फर्स्ट मेलेडी आई प्लंज्ड इनटू स्टडीड, कि वो मुझे ये तो भूल गया कि वो कौन सी बीमारी थी जो मैंने सबसे पहले पढ़ी। सम फेयरफुल डेवस्टेटिंग स्कर्ज, डेवस्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, स्कर्ज मीन्स कर्स, प्लेग, कोई छूती बीमारी, कोई तबाहकुन छूती बीमारी थी जो कि मैंने सबसे पहले पढ़ी। आई नो एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट, अभी मैंने उस लिस्ट को आधा ही पढ़ा था। ऑफ प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स, प्रीमॉनिटरी फॉर वार्निंग, मैनसिंग, जो इब्तदाई इलामात होती हैं, अभी उन इलामात की आधी लिस्ट को ही मैंने पढ़ा था। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, तो ये मुझे इसका पक्का यकीन हो गया कि मैं तो इसका बड़ी शिद्दत से इसका शिकार हो चुका हूँ, ये बीमारी तो मेरे अंदर मौजूद है। Here for this lengthy paragraph we'll discuss only one question, that is, what were the diseases the writer thought he was suffering from after reading the book of pharmacology। फार्माकोलॉजी कहते हैं अद्वियात से मुताल्लिक इल्म को, यानी उस बुक को पढ़ने के बाद राइटर ने क्या सोचा कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका वो शिकार है। आई सैट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, मैं जैसे खौफ से जम के बैठ गया, डर गया। एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, लिस्टलेसनेस, laziness, idleness, in the laziness of despair, in the idleness of despair, I again turned over the pages, फिर मायूसी भरी बेजारी के साथ मैंने पेजेस को दोबारा पलटना शुरू कर दिया। आई केम टू टाइफॉइड फीवर, तो मैं टाइफॉइड बुखार तक पहुंचा। रेड द सिम्टम्स, सिम्टम्स मीन्स साइंस, इंडिकेशंस, इलामात को पढ़ा। डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफॉइड फीवर, मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, तो मुझे पता चला कि ये तो कई माह से मैं इसका शिकार हूँ और मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं है। वंडर्ड, तो सोचने लगा। व्हाट एल्स आई हैड गॉट, कि इसके अलावा मुझे क्या बीमारी है। टर्न्ड अप सेंट वाइटसिस डांस फाउंड, तो सेंट वाइटसिस डांस ये एक कपकपाहट की बीमारी है, तो पता चला एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मुझे तवक्को थी, दैट आई हैड दैट टू, कि मैं इसका भी शिकार हूँ। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, मुझे अपने आप में दिलचस्पी पैदा होने लगी
and determined to sift it to the bottom. Sift it to the bottom, examine completely, examine thoroughly, यानी मैंने तहैया कर लिया कि मैं इसको मुकम्मल तौर पर मैं जायज़ा लूँगा. And so started alphabetically, इसलिए मैंने हरूफ तहज्जी के हिसाब से यानी A to Z के हिसाब से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. read up again and learnt that I was sickening for it. तो मुझे पता चला कि मैं इसका शिकार हूँ. and that the acute stage, acute means severe, serious, that the severe stage, serious stage would commence, इसका आगाज़ हो जाएगा, start, begin in about another fortnight. fortnight 2 weeks को कहते हैं, 15 दिनों को भी कहा जा सकता है कि ये तकरीबन 2 हफ्तों में ये इंतहाई खौफनाक जो सूरत हाल है उसका आगाज़ हो जाएगा इस बीमारी के साथ. ब्राइट्स डिजीज़, ये गुर्दों की कमज़ोरी की बीमारी है. आई वॉज रिलीव टू फाइंड, मैंने सुख का सांस लिया क्योंकि आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म. मॉडिफाइड मीन्स चेंज्ड, कि ये तब्दील शुदा फॉर्म में मेरे अंदर मौजूद है. सो फार एज दैट वॉज कंसर्नड आई माइट लिव फॉर ईयर्स, जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक़ है यानी ब्राइट्स डिजीज़ का ताल्लुक़ है, मैं इसके साथ भी कई सालों तक ज़िंदा रह सकता था. कॉलरा, कॉलरा कहते हैं हैज़ा को. आई हैड विद सवेयर कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी ये हैज़ा बहुत सारी पेचीदगियों के साथ मेरे अंदर मौजूद था. एंड डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया खुन्नाक को कहते हैं. आई सीम्ड टू हैव बिन बॉर्न विद, ऐसे लगता था जैसे ये पैदाइशी तौर पर ही मेरे साथ था. आई प्लॉडिड, प्लॉडिड कहते हैं ट्रज्ड, वॉक हैवीली, भारी कदमों के साथ चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना. कॉन्शेंशियसली, कॉन्शेंशियसली, केयरफुली थ्रू द 26 लेटर्स, मैंने बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी मेहनत के साथ 26 लेटर्स जो इंग्लिश के A to Z 26 हरूफ तहज्जी हैं उनके बारे में, उनके साथ शुरू होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में पढ़ लिया. एंड दी ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड, मेलेडी मीन्स डिजीज़, एलमेंट, और वो वाहद बीमारी जिसका मैंने नतीजा निकाला आई हैड नॉट गाट वॉज हाउसमेट्स नी, कि वो वाहद बीमारी जो मेरे अंदर मौजूद नहीं थी, जिसका मैं शिकार नहीं था, वो हाउसमेट्स नी थी. हाउसमेट्स नी कहते हैं घुटनों की सोजन की बीमारी को, यानी दुनिया जहान की सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद थी, सिर्फ एक बीमारी मेरे अंदर मौजूद नहीं थी. डियर स्टूडेंट्स, हेयर we'll discuss one question, that is, what was the disease he discovered that he did not have and what were his feelings? Very important question. I felt rather hurt about this at first. पहले तो मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ. It seemed somehow to be a sort of slight. मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी इंसल्ट हुई है, मेरी तौहीन हुई है. Why haven't I got housemates knee? मैं housemates knee की बीमारी का क्यों शिकार नहीं हूँ? Why this invidious reservation? Invidious means unpleasant, awkward, reservation means exception, sanctuary, कि मैं इससे क्यों बच गया हूँ, कि मुझे ये तौहीन आमेज़ तफरीक मेरे साथ क्यों है, कि मुझे ये हाउसमेट्स नी का मैं शिकार क्यों नहीं हूँ. आफ्टर अ वाइल however less grasping feeling prevailed. grasping means greedy, selfish. ताहम कुछ देर के बाद मेरे अंदर की जो हिरस थी, मेरे अंदर का जो लालच था इस बीमारी के बारे में, वो ज़रा कम हो गया कि ये बीमारी मेरे अंदर क्यों नहीं है. आई रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मीन्स थॉट, मैंने सोचा. दैट आई हैड एवरी अदर नोन मैलेडी इन द फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ ड्रग्स, अद्वियात का इल्म, कि उस फार्माकोलॉजी की बुक में हर बीमारी जो वहाँ लिखी हुई है मैं उसका शिकार हूँ. आई ग्रू लेस सेल्फिश, तो मेरी खुद गर्जी ज़रा कम हो गई. एंड डिटर्मन टू डू विदाउट हाउसमेट्स नी, और मैंने सारी ज़िंदगी हाउसमेट्स नी के बग़ैर ही गुजारने का पक्का इरादा कर लिया, तहैया कर लिया कि अब बाकी ज़िंदगी मुझे हाउसमेट्स नी के बग़ैर ही गुजारनी है. गाउट, गाउट कहते हैं जोड़ों का दर्द. इन इट्स मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज,
मेलिग्नेंट मीन्स डेंजरस, सीरियस, कि ये जो जोड़ों का दर्द था ऐसा लगता था इट वुड अपेयर हैड सीज्ड मी विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, ऐसे लगता था कि ये एक जानलेवा शक्ल की सूरत में मेरे अंदर मौजूद है, इसने मुझे सीज किया हुआ है, इसने मुझे पकड़ा हुआ है। एंड zymosis I had evidently been suffering with from boyhood, evidently means ऑब्वियसली, क्लियरली, और जाइमोसिस के बारे में तो साफ तौर पर था कि ये लड़कपन से ही मेरे साथ मौजूद है। देयर वर नो मोर डिजीजेज आफ्टर जाइमोसिस, जाइमोसिस के बाद कोई बीमारियां नहीं थीं, क्योंकि जाइमोसिस जी से स्टार्ट होता है और जी आखिरी लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। जाइमोसिस के बाद मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं थी, सो आई कंक्लूडेड दैट देयर वर नथिंग एल्स द मैटर विद मी, मैटर मीन्स प्रॉब्लम। तो मैंने ये नतीजा निकाला कि इसके बाद यानी जाइमोसिस की बीमारी के बाद के अलावा मेरे अंदर कोई मसला नहीं है, मैं किसी प्रॉब्लम का शिकार नहीं हूँ। हेयर इन दिस पार्ट we'll discuss one question: why did the writer think that he was a hospital in himself? I must say this is also one of the most important questions from the examination point of view. I sat and pondered. Pondered means thought, contemplated, socha. I sat and thought. I sat and contemplated. I thought what an interesting case it must be from a medical point of view, कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये कैसा एक दिलचस्प केस होगा, उसकी अपनी ज़ात। What an acquisition, acquisition कहते हैं पोजेशन को, एसेट को, एक्सेशन को, कि मैं कैसी एक दस्तयाबी होऊंगा, किन को, आई शुड बी अ टू अ क्लास, एक क्लास के लिए मैं कैसी जो है एक ख़जाना होऊंगा। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स, यानी मेडिकल के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इफ़ दे हैड मी, अगर मैं उनको दस्तयाब हो गया। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर एक हस्पताल था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां थीं, सारी बीमारियां थीं, सिर्फ एक नहीं थी, यानी हाउसमेट्स नी के अलावा सारी बीमारियां थीं, तो मैं तो खुद ही एक हॉस्पिटल था। ऑल दे नीड टू डू, उनको क्या करना था, वुड बी टू वॉक अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द एक चक्कर लगाना था, एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा, और इसके बाद वो अपना डिप्लोमा उनको मिल जाएगा। तो दैट्स वाई ही वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ। Here in this part, a bit lengthy paragraph, we'll discuss one question: describe how the writer tried to examine himself. A very interesting part of this essay is going to be discussed now. Then I wondered how long I had to live. तब मैंने सोचा, यहाँ wonder से मुराद सोचना, thought. I thought how long I had to live. I tried to examine myself. Examine, inspect. मैंने अपना मुआयना करने का मैंने सोचा, मैंने कोशिश की। I felt my pulse. मैंने अपनी नब्ज़ चेक की। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड माई पल्स एट ऑल, पहले पहल तो मेरी नब्ज़ मिली ही नहीं। देन ऑल ऑफ अ सडन इट सीम्ड टू स्टार्ट ऑफ। आई पुल्ड आउट माई वॉच एंड टाइम्ड इट, मैंने अपनी घड़ी निकाली और मैंने उसको गिनना शुरू कर दिया। आई मेड इट 147 टू अ मिनट। मेड इट काउंटेड, यानी मैंने घड़ी के हिसाब से 147 पल्सेस को मैंने काउंट किया। आई ट्राइड टू फील माई हार्ट, फिर मैंने अपने दिल को महसूस करने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील माई हार्ट, दिल ही नहीं मिला। आई हैड स्टॉप्ड, इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, ऐसे लगा जैसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। आई हैव सिंस बीन इंड्यूस्ड टू कम टू द ओपिनियन दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम। तो मैंने जो सोचा, नतीजा निकाला कि ये वहाँ होगा, दिल मेरे अंदर मौजूद है, एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और धड़क भी रहा होगा। बट आई कैन नॉट अकाउंट फॉर इट, अकाउंट फॉर इट, एक्सप्लेन द कॉज, लेकिन मैं इसकी वजह नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है। आई पैटेड माई सेल्फ, उसके बाद क्या किया, हिट, स्ट्रोक्ड, मैंने अपने आप को थपथपाया। ऑल ओवर माई फ्रंट, फ्रॉम वट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, अपनी कमर से लेकर अपने सर तक अपने जिस्म को मैंने थपथपाया। एंड वेंट अ बिट अराउंड ईच साइड, और हर तरफ गया, दोनों साइड पे, अपने जिस्म के दोनों साइड पे भी थपथपाया। एंड अ लिटल वे अप द बैक, और
अपनी पुश से थोड़ा सा ऊपर तक भी मैंने थपथपाया, बट आई कुड नॉट फील आर हेयर एनीथिंग। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग। देन मैंने क्या किया, अपनी ज़ुबान को मैंने देखने की कोशिश की। आई स्टक इट आउट, ब्रॉट इट आउट। मैंने अपनी ज़ुबान निकाली, एज फार एज इट वेंट, एज फार एज एवर इट वुड गो। मैंने इतनी बाहर ज़ुबान निकाल ली कि उससे ज़्यादा पहले कभी नहीं निकाली होगी। एंड आई शट वन आई एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर। और मैंने अपनी एक आंख बंद कर ली और दूसरी आंख के साथ मैंने अपनी ज़ुबान को देखने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप। मैं सिर्फ इसकी नोक ही देख पाया। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्रॉम दैट वॉज टू फील मोर सर्टन दैन एवर बिफोर दैट आई हैड स्कारलेट फीवर। तो बस एक चीज़ मेरे जहन में आई कि मुझे यकीन हो गया कि मुझे स्कारलेट फीवर है, यानी मुझे सुरख बुखार है। Here we'll discuss two questions. Number one, what were his feelings before and after visiting the British Museum? यानी ब्रिटिश म्यूजियम में जाने से पहले और बाद में उसकी क्या फीलिंग्स थी। नंबर टू, हाउ डिड द राइटर थिंक ऑफ गिविंग हिज फ्रेंड अ गुड टर्न? राइटर ने क्या सोचा कि वो अपने दोस्त से अब कैसे बदला ले सकता है, अच्छा बदला ले सकता है। यहाँ फ्रेंड एक्चुअली उसका वो डॉक्टर है। I had walked into that reading room a happy, healthy man. मैं उस रीडिंग रूम में, उस म्यूज़ियम में एक खुशकुन और सेहतमंद आदमी के तौर पर दाखिल हुआ था। I crawled out. Crawled means walk slowly. A decrepit, weak, decaying, wreck कहते हैं रुअन, डिस्ट्रक्शन। मैं अंदर तो दाखिल हुआ था एक सेहतमंद और खुशकुन आदमी के तौर पर, जबकि मैं बाहर एक कमज़ोर सा और एक तबाह हाल टूटा फूटा आदमी रेंगता हुआ बाहर निकला। यानी गया तो खुशकुन था, जब बाहर निकला तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसके अंदर तो दुनिया जहान की तमाम बीमारियां मौजूद हैं, जिसने उसको वक्ती तौर पे फील किया कि जैसे वो बिल्कुल ही अंदर से टूट फूट का शिकार हो गया है। From here the second question starts. I went to my medical man. He is an old chum of mine. वो अपने दोस्त के पास जाता है जो उसका चम है। चम मीन्स फ्रेंड, लंगोटिया, बड़ा करीबी दोस्त। एंड ही फील्स माई पल्स एंड लुक्स एट माई टंग। वो जब भी उसके पास जाता है तो वो उसकी पल्स चेक करता है, उसकी ज़ुबान को देखता है। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर ऑल फॉर नथिंग। और बिला वजह मौसम के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। व्हेन आई फैंसी आई एम इल। फैंसी मीन्स थिंक। जबकि मैं सोचता हूँ कि मैं बीमार हूँ, यानी वो डॉक्टर मुझे सीरियसली नहीं लेता। सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाई गोइंग टू हिम नाउ। तो चुनाचे अब मैंने सोचा कि मुझे उसके पास जाकर अब उससे खूब बदला लेना चाहिए कि मैं ज़रा अब उसको बताता हूँ ना कि मेरे अंदर तो इतनी बीमारियां मौजूद हैं। व्हाट अ डॉक्टर वॉन्ट्स। एक डॉक्टर क्या चाहता है? आई सेड इज प्रैक्टिस। यानी डॉक्टर को तो एक प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। ही शैल हैव मी, ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स। ऑर्डिनरी, नॉर्मल। तो मैंने सोचा मैं उससे जाके ये कहूँगा कि एक डॉक्टर को प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो मेरी शक्ल में उसको उसके 1700 यानी 1700 मरीज़ों से ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। और वो 1700 मरीज़ जो मामूली सी बीमारियों का शिकार होते हैं, विद ओनली 1 or 2 डिजीज़ ईच, जो कि एक या दो बीमारियों का शिकार होते हैं। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम। लिहाजा मैं सीधा उसके पास गया और उससे मिला। एंड ही सेड वेल, और उसने पूछा अच्छा व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है। Here dear students we'll discuss two questions. How did the writer explain his condition to the doctor? Number 2, what did the doctor do on listening the writer's explanation? Here number 1, I said
आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय। मैंने कहा कि प्यारे लड़के, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा विद टेलिंग यू वट इज़ द मैटर विद मी। लाइफ इज़ ब्रीफ एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड। कि ज़िंदगी मुख्तसर है, इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूँ आप मर ही ना जाएं। इतनी लंबी कहानी है मेरी बीमारियों की। बट I will tell you what is not the matter with me. I have not got housemates knee. मेरे अंदर housemates knee नहीं है, जो एक निस्वानी बीमारी है, औरतों की बीमारी है। Why I have not got housemates knee? I cannot tell you. ये बीमारी मुझे क्यों नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता। But the fact remains that I have not got it. Everything else however I have got. इसके अलावा हर बीमारी का मैं शिकार हूँ। And I told him how I came to discover it all. और फिर मैंने उसको बताया कि इन सारी बीमारियों के बारे में मुझे कैसे पता चला। From here the second question starts. Then he opened me, उसने मेरा मुंह खोला and looked down me and clutched hold of my wrist. Clutched means gripped. Took hold of my wrist and then he hit me over the chest. और तब उसने मेरे सीने पर मुक्का मारा। When I was not expecting it, a cowardly thing to do. मैं इसे एक बुज़दिलाना हरकत ही कहूँगा। Cowardly, timid, craven. I call it and immediately afterwards, immediately फौरन बाद, उसके बाद उसने क्या किया? Butted me, hit, stroked. Afterwards hit me. Afterwards he stroked me with the side of his head. तब उसने अपना सर मुझे मारा। असल में ये दोनों काम उसने इसलिए किए, वो समझ गया था कि इसको कोई बीमारी नहीं है। पहले जो मुक्का मारा उसके सीने पे, वो भी प्यार से मारा, और फिर अपना सर उसको मारा, ये भी प्यार से मारा, चूँकि वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसके दोस्त को कोई बीमारी नहीं है। आफ्टर दैट ही सैट डाउन एंड रोट आउट आ प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं मेडिसिन को। उसके बाद वो बैठ गए डॉक्टर साहब और उन्होंने दवाई लिख दी। एंड फोल्डेड इट अप एंड गेव इट टू मी एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट एंड वेंट आउट। मैंने उसको तय किया, अपनी पॉकेट में डाला और बाहर निकल गया। Dear students, here we'll discuss two questions. Number 1, describe his visit to the chemist. Number 2, what was the prescription given to the writer by the doctor? I did not open it. I took it to the nearest chemist's and handed it in. मैं उसे करीबी दवाइयों की दुकान पर ले गया और वहाँ जो आदमी था उसको दे दिया वो नुस्खा। The man read it and then handed it back. आदमी ने पढ़ा और तब फौरी मुझे वापस कर दिया। He said he didn't keep it. I said you are a chemist. मैंने पूछा आप दवा फरोश हो? He said I am a chemist. हाँ मैं एक केमिस्ट हूँ, दवा फरोश हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइंड, अगर मैं कोऑपरेटिव स्टोर और उसके साथ होटल चला रहा होता, आई माइट बी एबल टू oblige यू, तो मैं फिर आपकी खिदमत कर सकता था। बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, मैं चूँकि सिर्फ एक केमिस्ट हूँ, ये बात इसलिए मैं आपकी खिदमत करने से कासिर हूँ। From here the second question start, and this second question is very important from the examination point of view. That is, what was the prescription given to the writer by the doctor? उसने क्या लिखा था? I read the prescription, it ran. It ran means वो लिखा था 1 pound beef steak every 6 hours, यानी हर 6 घंटे के बाद गाय के गोश्त के टिक्के खाने हैं। 10 mile walk every morning, bed at 11 sharp every night, हर रात ठीक 11 बजे सो जाना है। and don't stuff your head with things you do not understand. stuff means fill, और अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें मत ठोंसें जिनको आप नहीं समझते हैं। I followed the directions, मैंने उन हदायत पर अमल किया। with the happy result, speaking for myself, that my life was preserved, कि मेरी ज़िंदगी महफूज हो गई, and still going on, और अभी तक जारी है। तो यहाँ क्या मतलब है? राइटर हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी उस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते, और अपने दिमाग में खामखा ऐसी चीज़ों को नहीं ठोंसना चाहिए जिनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हर चीज़ के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो उन्हीं प्रोफेशनल्स के पास जाके मशवरा करना चाहिए ताकि वो आपको सही गाइड कर सकें। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज़ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स,
I'm sure you might have understood the lesson completely. I would advise you to learn all the questions and their answers in a very good way from the examination point of view. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.